یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا زرعی اقتصادی ماہرین کی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، زرعی شعبے میں ملک کی بے مثال کامیابی کے نمایاں پہلوؤں کو کیا اجاگر۔ چیف الیکشن کمشنر کی قیادت میں الیکشن کمیشن کی ایک ٹیم 8 اگست سے کرے گی جموں کشمیر کا 3 روزہ دورہ، متعلقین کے ساتھ انتخابات کے انعقاد سے متعلق امور پر کیا جائے گا تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر حکومت نے قوم دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی پاداش میں 6 ملازمین کو ملازمت سے کیا برطرف، اور لیفٹننٹ گورنر کے ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کا اگلا شمارہ 18 اگست کو ہوگا نشر، لوگوں سے کی آراء اور تجاویز طلب۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اضافی غذائی اجناس والا ملک ہے اور یہ عالمی سطح پر غذا کی یقینی فراہمی میں درپیش مسائل کا حل بھی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت زرعی سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے اصلاحات اور اقدامات کر رہی ہے تاکہ کسانوں کے معیار حیات میں بہتری آ سکے۔ آج نئی دلی میں زرعی اقتصادی ماہرین کی 32ویں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ زراعت حکومت کی اقتصادی پالیسی کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت باجرہ، دودھ، دالیں اور مسالہ جات تیار کرنے والا بڑا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نامیاتی کاشتکاری کو فروغ دینے کی طرف خصوصی توجہ دے رہا ہے اور مرکزی بجٹ میں اس مقصد کے لیے زر کثیر مختص رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بھی زرعی شعبے میں بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران مختلف موسموں کا مقابلہ کرنے والی فصلوں کی 900 اقسام وجود میں لائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت 500 سے زیادہ کالج زرعی تعلیم دینے میں مصروف ہیں، جبکہ کسانوں تک جدید ٹیکنالوجی اور جانکاری پہنچانے کے لیے 700 سے زیادہ کرشی وگیان کیندر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران 90 لاکھ ہیکٹیئر اراضی کو مائکرو اریگیشن کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے کاشتکاری میں ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اختراعی اقدامات کی بدولت بھارت کے کسان مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی فوڈ سیکیورٹی نظام بھی مستحکم ہوگا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں زرعی شعبہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کیمیاوی کاشتکاری کے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اب حیاتیاتی کاشتکاری پر زور دے رہا ہے۔ آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس بین الاقوامی کانفرنس میں 75 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 1000 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کی قیادت میں الیکشن کمیشن کی ایک ٹیم اس ماہ کی 8 تاریخ سے جموں کشمیر کا 3 روزہ دورہ کرے گی۔ ٹیم کے دورے کا مقصد جموں کشمیر میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ پروگرام کے مطابق ٹیم کے ارکان جموں کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کر کے انتخابات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی ٹیم یوٹی کے چیف الیکٹورل آفیسر، اسسٹنٹ پولیس نوڈل آفیسر اور مرکزی فورسز کے کوآرڈینیٹر کے ساتھ میٹنگ کرے گی۔ کمیشن چیف سیکرٹری ڈی جی پی تمام اضلاع کے ضلع الیکشن افسروں اور ضلع پولیس سربراہان کے ساتھ بھی تیاریوں کا جائزہ لے گا۔ بعد میں کمیشن 10 اگست کو جموں میں ایک پریس بریفنگ کے دوران میڈیا کو اپنے دورے سے متعلق تفصیلات دے گا۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر میں لوک سبھا انتخابات 2024 میں ریکارڈ ٹرن آؤٹ کے بعد سی ای سی نے کہا تھا کہ پارلیمانی انتخابات میں جموں کشمیر کے لوگوں کی فعال شرکت مستحکم جمہوریت کے تئیں ایک مثبت علامت ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا مہم کو مزید تقویت بخش کر جوش و خروش کے ساتھ اس میں دوبارہ شرکت کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر داخلہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ 9 اگست سے 15 اگست تک ترنگا لہرائیں یا اسے اپنے گھروں پر رکھیں۔ سیاحت اور کلچر کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا ہے کہ بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنانے میں سیاحت کا شعبہ ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ گریٹر نوئیڈا میں آج انٹرنیشنل ہاسپٹیلٹی
एक्सपो 2024 के 7वें शुमारे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के सियासी सेक्टर में काफी वसाइल और मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये अहम सेक्टर भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में कलीदी रोल अदा कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो ने आज अफसरान की एक मीटिंग तलब करके जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में हर घर को नल के जरिए पीने के पानी की फराहमी के सिलसिले में तरतीब दिए गए मंसूबों की अमल आवरी का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने तफसीलात देते हुए कहा कि महकमे ने जल जीवन मिशन की कामयाब अमल आवरी और इस सिलसिले में मुकर्रर किए गए अहदाफ के 100% हुसूल के लिए काबिल अमल मंसूबा तरतीब दिया है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत रवा माली साल की दूसरी सहमाही में 1111 और तीसरी सहमाही में 1318 स्कीमों को पाए तकमील तक पहुंचाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। मीटिंग में मिशन के दीगर कई अहम पहलुओं की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुनक्कद की गई खुसूसी लोक अदालत आज इख्तिताम पजीर हुई। इस लोक अदालत का बुनियादी मकसद शहरियों को आसान तरीके पर बर वक्त इंसाफ फराहम करना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस लोक अदालत का इनेकाद इसकी 75वीं सालगिरह के मौके पर किया था। लोक अदालतों के जरिए से मुतलकीन को कम खर्चे पर जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम होता है। तकरीब से खिताब करते हुए कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत के दौरान 100 से ज्यादा मामलात निपटाए गए। उन्होंने कहा कि भारत में दरमियानदारी के जरिए से मामलात हल करने की अजीम रिवायात हैं। जिस्मानी तौर खास बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहबूद के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जुवेनाइल कमेटी के एहतमाम से आज SKICC श्रीनगर में सालाना मशावरती प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसका इफ्तिताह हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ताशी रैबिस्टन ने किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जिस्मानी तौर खास बच्चों को हर महाज पर मुश्किलात दरपेश रहती हैं। जस्टिस ताशी रैबिस्टन ने कहा कि उन्हें समाज में यकसान मौके फराहम करने से उनकी बहबूद और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आम लोगों के साथ साथ सरकारी एजेंसियां और रज़ाकार तंजीमें भी अपना रोल अदा कर सकती हैं। तकरीब में हाईकोर्ट के कई जज साहिबान, माहिरीन कानून और अदलिया के कई अफसरान ने शिरकत करके मौजू के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। साइंस और टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज एक मीटिंग में 100 कबायली देहात की निशानदेही करके उनके काबिल तजदीद तवानाई के दायरे में लाने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। इस मीटिंग का इनेकाद सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों की वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुई मीटिंग के तनाजुर में किया गया। सौरभ भगत ने कहा कि मुंतखब किए गए कबायली देहात को काबिल तजदीद तवानाई के दायरे में लाने से इन इलाकों के लोगों की मयार हयात में बेहतरी आने के साथ साथ उनकी इक्तिसादी हालत भी मुस्तहकम होगी। उन्होंने सभी अजला के डिप्टी कमिश्नरों को जारी स्वच्छता पखवाड़े के दौरान मखसूस कबायली देहात में सोलर होम लाइट्स और बायोमास चूल्हे तकसीम करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कौम दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने की पादाश में 6 मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। इनमें से 5 का ताल्लुक पुलिस महकमे और 1 का ताल्लुक महकमे तालीम से है। इन मुलाजमीन की गैर कानूनी सरगर्मियां कानून नाफिज करने वाली और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नोटिस में आई थी, जिसके बाद पाया गया कि ये मुलाजमीन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और दहशत गर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलविस हैं। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि हुकूमत ने ऐसे कौम दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है जो सरकारी नौकरियों में रहने का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से नश्र की जा रही हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 18 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। एलजी ने इस प्रोग्राम के लिए लोगों की आरा और तजावीज तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी आरा व्हाट्सएप नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। कश्मीर खत्ते के उभरते हुए सनतकारों और इख्तराई जहन रखने वाले नौजवानों को दरपेश मसाइल का इजाला करने की गरज से आज जम्मू कश्मीर ईडीआई के श्रीनगर दफ्तर सेम्पोरा पाम्पोर में तबादला ख्याल की एक नशस्त मुनक्कद हुई। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ईडीआई के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि ये इदारा ऐसे ख्वाहिशमंद सनतकारों और कारखानादारों की मुआवनत के लिए हमजहत तैयार रहता है जो तिजारत के सिलसिले में इख्तराई नौयत के ख्यालात लेकर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि नई स्टार्टअप पॉलिसी नौजवानों की सहूलियत के लिए तरतीब दी गई है ताकि वो बगैर किसी दिक्कत के न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर सकें। इस मौके पर वादी के कई कामयाब सनतकारों ने शुरका के साथ अपने तजुर्बात बांटे। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा शकीलुर रहमान ने आज अफसरान की एक मीटिंग में जिले को मनशियात से पाक बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के माबैन करीबी तालमेल पर जोर दिया। इधर बड़गाम में भी मनशियात के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जिले के मागाम और माशवा इलाकों में कई कनाल अराजी पर फैली भंग की काश्त को तबाह कर दिया। पुलिस के हुकाम ने कहा कि जिला भर में इस तरह की कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। केरला में पसियां गिराने से बुरी तरह मुतासरा वायनाड जिले में फौज की तरफ से इमदादी और बाजाबातकारी कार्रवाइयां जारी हैं। फौज, एनडीआरएफ और दीगर एजेंसियों के 1300 से जायद एहलकार आज पांचवें रोज भी जदीद मशीनरी और आलात की मदद से मलबे के नीचे से मजीद लाशों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फौज ने कहा है कि बचाव कोशिशों के तहत मजीद लाशों को निकालने और लाजमी खदमात को बहाल करने की तरफ तवज्जो मरकूज की जा रही है। आज एजा अतिया के तौर पर देने से मुतल्लिक 14वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है। इस सिलसिले में वजारत सेहत व खानदानी बहबूद ने आज नई दिल्ली में एजा अतिया देने से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर सेहत की वज़ीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने उन कुंभों की इज्जत अफजाई की जिन्होंने अपने ब्रेन डेड अफराद खाना के एजा दूसरों के लिए अतिये के तौर पेश किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर में पार्टी के कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान कौम की इनफरादियत और शिनाख्त को जिंदा रखने में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जमात जम्मू कश्मीर के नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती रहेगी। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक इस मौके पर श्रीनगर के कई सियासी और समाजी कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। 2 रोजा आकाशवाणी म्यूजिक कंसर्ट 2024 आज नई दिल्ली में शाम 5:30 बजे से आकाशवाणी के रंग भवन में शुरू हुआ। कई मारूफ फनकार जिनमें पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित जिया तीरथ म्योंदी और पंडित विश्व मोहन भट्ट म्यूजिक कंसर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा जम्मू, हैदराबाद, पटना, शिलोंग, इम्फाल, कटक, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई और रांची समेत मुख्तलिफ शहरों में भी आकाशवाणी म्यूजिक कंसर्ट का इनेकाद किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत को आज उस वक्त दचका लगा जब शूटर मनु भाकर खवातीन के 25 मीटर पिस्तौल मुकाबले के फाइनल में चौथे नंबर पर रही। इस तरह से वो तमगा हासिल करने में हैट्रिक लगाने में नाकाम रही। मनु भाकर ने जारी पेरिस ओलंपिक मुकाबलों में पहले ही कांस्य के 2 तमगे हासिल किए हैं। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔